Good morning to all my dear students of class 8th. Today I am here to explain you all the chapter number 4th of the subject Social Studies part Civics. The name of the chapter is the Judiciary. First thing you all have to do is to write today's date. So let's begin the explanation now. Laws are needed for regulating working of the state. People violating laws have to punish to ensure proper implementation of laws. Similarly, it is also important that disputes between people are resolved peacefully. Judiciary is needed to discharge these functions. Judiciary is the third organ of the political system. Its main function is to protect the rights and freedoms of the citizens, administer justice and settle disputes in accordance with the laws of the Constitution and those enacted by the legislature. Justice is possible only if the judiciary is impartial and unbiased in its decisions. Therefore, it is important that judiciary remains independent of the executive and legislature. आप लोगों को पता है, मैंने पिछले चैप्टर में या पहले कभी आप लोगों को बताया होगा कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना, रूल्स एंड लॉज को बनाना. एग्जीक्यूटिव का काम होता है ये देखना कि लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं. जुडिशरी का क्या काम है, अगर किसी ने लॉ तोड़ा तो उसको हमें डिसीजन कैसे देना है, जस्टिस कैसे देना है, लॉ टूटने पे क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, या किसी को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है तो उसके साथ न्याय कैसे होना चाहिए. तो जुडिशरी का मतलब यही है कि जुडिशरी का काम यही होता है लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, और जुडिशरी का काम सही तभी हो सकता है वो जब बिना भेदभाव किए अपना डिसीजन सुनाए. The judiciary in India. India has an integrated and unified judiciary. The Supreme Court, which is also called the apex court, is situated at the top of our judicial structure. आप सभी को बता दें, there are 3 kinds of courts. Number 1 is Supreme Court, number 2 is High Court and number 3 is Local Court. ठीक है. सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट लेवल कोर्ट माना जाता है, जो पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है, वो है दिल्ली में. ठीक है. फिर है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट जो है वो हर एक स्टेट का अलग हाई कोर्ट होता है. उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? प्रयागराज में. ठीक है. फिर तीसरे लेवल पे आता है लोकल कोर्ट, जो आपकी सिटीज या आपके गांव के जो कोर्ट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, जैसे करछना, कचहरी, ये सब. ठीक है. Okay. Below the Supreme Court, there are high courts in the states, district courts and other courts at the local level. The Supreme Court is the highest court of justice in the country. It is the power to supervise and control the entire judicial system in India. Supreme Court के पास पावर होता है पूरा judicial system को control करने का. नेक्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ कोर्ट. कोर्ट की ज़रूरत क्यों होती है? आप ये समझिए, अगर सिर्फ लॉज बना के छोड़ दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट करके छोड़ दिया जाए और एग्जीक्यूटिव ये ना देखे कि लॉ कैसे फॉलो हो रहे हैं, तो लोग तो अपनी मनमानी करें. या अगर कोई जस्टिस प्रोवाइड करने वाला नहीं है, कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं है, तो लोग तो गुनाह करते रहेंगे. ठीक है, लोग तो क्राइम करते रहेंगे. इसीलिए कोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है. Next is independent judiciary. What is independent judiciary? इसको पढ़ते हैं. An independent judiciary is necessary so that judges can discharge their duties without pressure from the executive or the legislature. An independent judiciary does not mean the justice is meted out arbitrarily. The judiciary has to follow the rule of law. This means that the same laws applies to all citizens. In other words, it means equality before law. बेसिकली ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जुडिशरी का काम ये होना चाहिए कि लॉ के पहले इक्वालिटी करना. इक्वालिटी मीन्स एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको सज़ा, उस क्राइम की सज़ा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगी उसी के हिसाब से मिलेगी. ये नहीं कि वो अमीर है तो उसको सज़ा कम मिलेगी, वो गरीब है तो उसको सज़ा ज़्यादा मिलेगी. Now, we will study about the main court of India, which is the Supreme Court.
The Supreme Court is the highest authority of law in our country. It is located in New Delhi. मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पूरे इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो हाईएस्ट लेवल कोर्ट है, ये पूरे इंडिया में एक ही जगह है, दैट इज इन न्यू दिल्ली. Composition. The Supreme Court of India consists of a Chief Justice and some other judges, the number of which may be fixed by the Parliament from time to time. At present, the total number of judges besides the Chief Justice cannot be more than 30. ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले कितने लोग होते हैं. अंदर एक चीफ जस्टिस होता है और कुछ जजेस होते हैं. प्रेजेंट टाइम पे एक चीफ जस्टिस है और 30 अदर जजेस हैं. 30 से ज्यादा अदर जजेस नहीं हो सकते. क्वालिफिकेशन. सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक इंसान के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहली, ही मस्ट हैव लीगल ट्रेनिंग एंड बैकग्राउंड. उनके पास लॉ की लीगल ट्रेनिंग होनी चाहिए. Second, he must be judge of a high court or of 2 or more such courts in succession for at least 5 years. उनके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हाई कोर्ट में जज रहने का. हाई कोर्ट में अगर वो 5 साल जज रह चुके हैं तभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं. नेक्स्ट, एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स. या अगर वो किसी हाई कोर्ट के जज नहीं रहे हैं, अगर हाई कोर्ट के या किसी सक्सेशन कोर्ट में 10 साल के लिए वकील रह चुके हैं तो भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं. द पर्सन मस्ट बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट आर डिस्टिंग्विश्ड जस्ट. ये प्रेसिडेंट के नॉलेज में होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है. अपॉइंटमेंट्स एंड द कॉलेगियम. जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यूज्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु एक्टेड on the advice of the Union Cabinet. Subsequent to the rulings in the different cases, the President has to appoint judges who have been chosen by the Supreme Court's Collegium, a closed group comprising the Chief Justice of India and the 4 senior most associate judges of the court. It is noteworthy that the Union Cabinet and Parliament have almost no role to play in the appointment of judges to the Supreme Court or to any of India's 24 high courts. बेसिकली ये कह रहा है कि पहले कैसे अपॉइंट किए जाते थे, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे. इसमें जजेस का कोई रोल नहीं होता है. पे एंड अलाउंसेस. क्या अलाउंसेस या क्या सैलरी मिलती है? द मंथली सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ₹1 लाख. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए मिलती है और जो जजेस उनके साथ बैठते हैं चीफ जस्टिस के साथ, उनको 90,000 रुपये तनख्वाह मिलती है. टर्म्स ऑफ ऑफिस. ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज बना है, चीफ जस्टिस बना है, तो कितने साल तक बना रह सकता है. द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड टू वर्क टिल दे अटेन 65 ईयर्स ऑफ एज. एक आदमी जिसकी उम्र 65 साल तक की है, 65 ईयर्स तक है, वो बस तभी तक सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस रह सकता है. 65 ईयर्स के बाद वो रिटायर हो जाता है. Although they are appointed by the president, their services cannot be terminated by him. They can resign from their post of their own according whenever they like. ये कह रहा है कि वैसे तो चीफ जस्टिस और जजेस को सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट चुनते हैं इंडिया के, लेकिन उनको वो बीच में हटा नहीं सकते. वो खुद चाहें तो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं और उस पद से हट सकते हैं. डेथ कैन बी अनदर केस कॉज ऑफ द एंड ऑफ देयर सर्विस बिफोर द एज ऑफ रिटायरमेंट. या फिर अगर उनकी डेथ हो जाती है 65 ईयर्स के पहले, तब वो जज या चीफ जस्टिस वहां के बदलते हैं. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसे आप लोग खुद रीड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं और क्या फंक्शंस वो करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज हाई कोर्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ईच स्टेट विल हैव अ हाई कोर्ट. ये मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है. जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट प्रयागराज में है, राजस्थान का हाई कोर्ट जयपुर में है. इसी तरह से हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है. अब देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हाई कोर्ट का जज होने के लिए. इन ऑर्डर टू बी अ हाई कोर्ट जज अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सबसे पहले वो पैदा इंडिया में होना चाहिए, उनकी बर्थ इंडिया की होनी चाहिए. दूसरा,
मस्ट हैव होल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, उनके पास जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए 10 सालों से। शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 साल से। शुड बी अ रेनोड राइटर इन द फील्ड ऑफ लॉ, लॉ की फील्ड में अच्छा राइटर होना चाहिए। और शुड बी टीचिंग इन अ लॉ कॉलेज, या फिर किसी लॉ के कॉलेज में वो पढ़ा रहे हों, प्रोफेसर हों, तब वो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। एक हाई कोर्ट के जज को क्या सैलरी मिलती है? द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 90,000 पर मंथ मिलती है, और उनके साथ बैठने वाले बाकी जजेस को 80,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। अब हाई कोर्ट के जजेस का क्या टर्म होता है, कितने साल तक वो जॉब कर सकते हैं? द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट रिमेन इन द ऑफिस टिल द एज ऑफ 62। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 ईयर्स एज रखी गई और हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स। Removal. The judges of the High Court can be removed in the same way as in the case of a judge of the Supreme Court, that is through the process of impeachment. Powers and functions. Again, हाई कोर्ट के भी पावर्स एंड फंक्शंस आप लोग खुद पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। Every state in India is divided into a number of districts or judicial administration. The highest civil court in a district is that of the district judge. The district judge tries civil cases and hears appeals from the lower courts. Munsifs and sub-judges hear petty cases. The sessions judge tries criminal cases. The district judge also acts as the session judge. The magistrate also deals with criminal cases. अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे विलेज, हमारी सिटीज में होते हैं। ये सारे केसेस सॉल्व करते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, क्रिमिनल केसेस तक, जैसे मर्डर। लोक अदालत। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्विक, affordable and speedy justice to the poor and downtrodden, the system of Lok Adalat was provided in 1985. Camps of the Lok Adalats were initially started in Gujarat in 1982, and now it has been extended throughout the country. The movement was part of the strategy to relieve heavy burden on the courts with pending cases. The aim was to give relief to the litigants who wanted to get justice. There was a serious problem of overcrowding in courts. If there is a permanent forum to which cases may be referred to, the load can be taken off the court. लोक अदालत की शुरुआत सिर्फ इस वजह से हुई थी ताकि कोर्ट के बर्डन को थोड़ा कम किया जाए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं, कुछ की डेट सालों बाद आती हैं, तो कोर्ट्स का बर्डन कम करने के लिए लोक अदालत की शुरुआत हुई। लोक अदालत स्टैब्लिश कब हुआ था, ये पढ़ते हैं। लोक अदालत स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट टू सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू कॉम्प्रोमाइज एंड कंसिलिएशन। लोक अदालत में क्या होता है, पहले सोचा जाता है कि लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट्स या लड़ाई चल रही है उसको कॉम्प्रोमाइज से सॉल्व कराया जाए, यानी कि बैठा के समझा के बोला जाए कि कोर्ट में जाने से बेहतर है आप लोग आपस में एक रास्ता ऐसा निकालिए जिसमें दोनों को किसी तरीके का लॉस ना हो। The Lok Adalat is presided over by the retired or sitting judicial officer as the chairman, with other members usually the lawyer or a social worker. लोक अदालत में बेसिकली कौन अपना जस्टिस सुनाता है, वो जो रिटायर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, ठीक है। देयर इज नो कोर्ट फी, यहाँ के कोर्ट की कोई फी नहीं होती। मेन कंडीशन ऑफ द लोक अदालत इज दैट बोथ पार्टीज इन डिस्प्यूट शुड अग्री फॉर अ सेटलमेंट। इसका मेन मोटिव ये होता है कि दोनों पार्टी को एग्री होना चाहिए कि हाँ हम इस सेटलमेंट पे एग्री हो रहे हैं, तभी वो केस वहाँ पे ख़त्म होता है। द डिसीजन ऑफ द लोक अदालत इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोक अदालत। लोक अदालत ने जो डिसीजन दे दिया उसके लिए फिर आप बाद में कोई अपील नहीं पेश कर सकते। इसके कहने का अर्थ ये है, जैसे हमने किसी पे कोई केस किया, हाई कोर्ट के फैसले से अगर मुझे संतुष्टि नहीं है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लेके जा सकती हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन सुना दिया उसके अगेंस्ट फिर मैं नहीं जा सकती क्योंकि वो हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है। लोक अदालत से हैव हेल्प द पीपल टू गेट जस्टिस एंड डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड क्विकली एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। लोक अदालत ने बहुत लोगों की मदद करी है डिस्प्यूट्स, लड़ाई सॉल्व कराने में, जिसमें टाइम भी कम लगता है और पैसा भी नहीं लगता है। चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इस चैप्टर की। चूज द करेक्ट आंसर। द सुप्रीम कोर्ट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 31 जजेस। 30 और 31 यू कैन डू, ओके।
Next, the judges of the Supreme Court retire at the age of 62 years. Sorry, by mistake I have marked the wrong answer. The judges of the Supreme Court retire at the age of 65 years. Third, judiciary in India is independent. The High Court functions under the supervision of the Supreme Court. Next, identify which courts would be dealing with the cases listed below. First, a dispute between a state government and a company located in the same state over non-payment of local taxes. Supreme Court. A petition filed by lawyers against a state government for being denied access to information in a state where there is no law and order because and communal riots. Supreme Court. A dispute between two states X and Y over the sharing of waters of river flowing through both states. Supreme Court. Next, a dispute between two persons A and B over the right to inherit a particular property. Lok Adalat. Filling the blanks with appropriate word from the list. First, the Supreme Court is the highest court in India. Second, a judge of the Supreme Court should have worked as a judge of a high court for not less than 10 years. Third, the judges of high court serve till they reach the age of 62. Fourth, Lok Adalats are presided over by sitting or retired judicial officer. Fifth, the Supreme Court is the guardian of the Constitution. Next, match the following. The Supreme Court, the highest court of India, as I told. The High Court, the highest court of a state. District Judge, the highest civil court in a district. Public interest litigation, protection of public interest. Lok Adalats, speedy justice. 5, 4, 2, 3, 1. So that's it. Question answers you will get in the homework. Chapter number 4 of the subject Civics is over today. Thank you very much.